Hello. When documents are removed, document working with phone number. Hello. Huh? Yes. Apa yang kamu bisa lah. Ini barang beli. Ini dari jenap. Pusatnya. Baik, ada. Abi suara lu bagus banget. Ini kecil. Ini begini. Masih kita boleh loh. Sorry, finally. Supaya harus barang dengan jadi macam.
करायचं सुरू स्टार्ट झालं वाटतं इथे. Hello everyone. So UPSC has released its notification for the Civil Services Exam 2026, and we are going to give you the basic details about what changed in the notification this time and what has remained the same. Okay. So first of all, I will give you the overall idea about the changes brought in by the UPSC notification and the changes which were not introduced. Okay. So here we will have a overview, and after that we will go also through the notification of UPSC. Okay. So basically it will be a two-time introduction of the changes and remaining things. So first of all, I will give you the basic details of the notification. The last date for application of the UPSC Civil Services exam is going to be 24th February 2026, 6 p.m. 6 p.m. in the evening. But I would urge you not to wait till the last day of exam, and also I would urge you not to fill the form in hurry, because UPSC has introduced a new portal for application to the CSE exam, which is called as URN. Okay, you will have to generate a URN number. Okay, universal registration number. What are the basic prerequisites for applying? First of all, you should be a graduate or you should be appearing for the final year. Then you should be having the scanned copies of your photograph and your signature. Now note that your photograph should not be 10 days older while filing or while uploading the photograph. It should not be older than 10 days. So basically that means if you are going to fill the form on 10th February, so your photograph should not be earlier than 1st February.
ठीक है. So click a fresh photograph, and as UPSC has recommended last year also, you should be having the name which is mentioned in the matriculation certificate mentioned inside the photograph, and also the date of the photograph. Okay. Also, second thing you should note is that your appearance should be the same throughout each stage of the examination. So now, if you are going to click photograph without beard and with specs, for example, your appearance should be the same in the prelims examination, in the mains examination, and while appearing for the interview. Okay. Keep the appearance same throughout each stage of the examination. It may be with specs, without specs, with beard, without beard, with mustache, without mustache. Okay. So that thing you should keep in the mind. Okay. Also, another thing UPSC has introduced is this time while filling the form, they will also click your online live picture. Okay. So that thing UPSC has introduced. Also, while uploading the signature, you need to sign 3 times on the with the black pen on the white A4 sheet. Okay, 3 times you need to sign, and that will be uploaded on the portal. And also, if you belong to OBC or SC/ST category or persons with disability, you need to have the basic documents with you ready, like for example OBC non-criminal certificate, then EWS certificate or community certificate of SC/ST, etc. Also the proof that you belong to different category of persons with disability, that certificate, that medical certificate should also be there. Okay. Now let's focus on which all changes UPSC has brought this time in this notification. First of all, the candidates belonging to Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Foreign Service in 2025. The result is yet awaited because interviews are going on. ठीक है. अगर 2025 के फाइनल रिजल्ट में कोई IAS, IPS, IFS बनता है तो उनको वापस एग्जाम में बैठने के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा. ये प्रोविजन पहले भी था इन 3 सर्विसेज के लिए. ठीक है. और एक बात, तो इनको वापस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा. ये प्रोविजन पुराने सर्विस मतलब 2024 या 2023 या फिर उससे पुराने जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी सेम लागू होता है. ये पहले भी था. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. ठीक है. अब आती है चेंजेस की बात. अब इन 3 सर्विसेज के अलावा जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ग्रुप ए सर्विस, इसमें IRS सर्विसेज आती है, IRS कस्टम्स, IRS इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह. ठीक है. ग्रुप ए सर्विस अगर आपको मिलती है इन 2025 फाइनल रिजल्ट, तो आपको सिर्फ 1 साल दिया जाएगा एग्जाम में रीअपियर करने के लिए. You will have only 1 chance for reappearing in the UPSC exam 2026. जो 25 में जिनको ग्रुप ए सर्विसेज मिलती है उनको एक ही चांस दिया जाएगा टू रीअपियर इन द एग्जाम 2026. उसके बाद अगर उनको वापस एग्जाम में बैठना है उनको सर्विस रिजाइन करनी पड़ेगी एंड देन दे कैन रीअपियर फॉर द एग्जाम 2027 की हो या 2028 की. ठीक है. तो दिस मेजर चेंज यूपीएससी हैज ब्रॉट इन. ठीक है. और ये तो हो गई 2025 में जिनका सिलेक्शन होता है उनके लिए. अब अगर किसी का 2024 के एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा है, 2023 की या फिर उससे पहले के एग्जाम्स में सिलेक्शन हो रखा है एंड उनको ग्रुप ए सर्विसेज मिली है और उनको और सर्विसेज के लिए अपीयर करना है, फॉर एग्जांपल उनको IAS, IPS, IFS चाहिए, तो उनके लिए यूपीएससी ने 2026 का अटेम्प्ट या 2027 का अटेम्प्ट, उनके लिए 2 ऑप्शंस में से एक साल आपको एक एग्जाम आपको चुननी पड़ेगी और उसमें ही आप रीअपियर हो सकते हो. ईदर इन 2026 और इन 2027 you can appear. Who can appear? The candidates who were selected in 2024 or earlier. They will have option to reappear in either 2026 exam or 2027 exam while not resigning from their service. अगर उनको
जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 2026 का अटेम्प्ट दे दिया तो उनका ये चांस खत्म हो गया, उनको वापस एक और बार 2027 के अटेम्प्ट में भी उनको रीअपियर होना है, then in that case they will have to resign from their current group A service. ठीक है, तो this change has been brought by UPSC notification this year. Now sir, what about the group B services? तो ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. फॉर एग्जांपल डायनेक्स ये ग्रुप बी सर्विसेज में आते हैं. तो अगर आपको 2025 के फाइनल रिजल्ट में डायनेक्स या फिर ग्रुप बी सर्विसेज मिलती है तो आप पे ये पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ 2026 या 27 में ही एग्जाम देना, नहीं, आप उसके बाद भी दे सकते हो, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो दिस इज द गेम चेंजर बिकॉज नाउ द cadre preferences while filling the detailed application form will change. ठीक है, बिकॉज सिर्फ IAS IPS IFS के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ए सर्विसेज डालोगे, अगर वो सर्विस आपको मिल गई एंड because even after taking one chance, if you could not upgrade that service to the IAS IPS service, then you should be satisfied with that service throughout your life or throughout your career. If you don't want to resign, of course. अगर रिजाइन करते हो तो आपको और चांस है या फिर आप और जगह पे भी अपना करियर सेट कर सकते हो, मगर आपको उसी सर्विस में रहना है तो यू शुड बी सेटिस्फाइड एंड अकॉर्डिंगली यू शुड फिल द सर्विस प्रेफरेंसेस. ठीक है, और एक चीज जो चेंज हुई है इस बार वो है आपका जो आईडी कार्ड्स आपको अपलोड करने होते हैं या फिर आईडी कार्ड मेंशन करना होता है, आपके पास ऑप्शन तो है कोई भी आईडी कार्ड मेंशन करने के लिए, बट यूपीएससी हैज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यू मेंशन आधार कार्ड एज योर आईडी कार्ड बिकॉज इट विल फैसिलिटेट, इट विल स्मूदन द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन. बिकॉज इस बार जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन वो भी होने वाला है एंड दैट इज इंटीग्रेटेड विद आधार पोर्टल, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, वो थोड़ा सा सीमलेस प्रोसेस हो जाएगा. सो यू आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय यूपीएससी टू मेंशन आधार कार्ड एज योर आईडी कार्ड. ये और एक चेंज है. ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, दिस टाइम व्हाइल फिलिंग द फॉर्म यू विल बी रिक्वायर्ड टू गिव लाइव पिक्चर. ठीक है, लाइव फोटो क्लिक किया जाएगा आपका, सो दैट द मिसयूज ऑफ यूपीएससी एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी अवॉइडेड. ठीक है, जो एग्जाम देने वाले हैं वही फॉर्म भर रहे कि नहीं ये भी वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा. ठीक है, एंड along with this you will need to upload 3 signatures by the black pen on the A4 white paper. ठीक है, 3 सिग्नेचर्स आपको अपलोड करने हैं. ये बेसिक चेंजेस कुछ यूपीएससी ने इस बार लाए हैं. और सबसे बड़ा चेंज ये सब इसमें है वो है पोर्टल का. जिस एप्लीकेशन पोर्टल पे आप पहले फॉर्म भरते थे, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जिन्होंने फॉर्म भरा है उन्होंने ओटीआर पोर्टल पे अपने सारे डिटेल्स फिल किए थे, उसके बाद फिर उन्होंने एप्लीकेशन किया. अब इस बार यूपीएससी ने यूआरएल पोर्टल लॉन्च किया है. इट मींस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर. तो एक बार आपको सारे डिटेल्स यूआरएल पोर्टल में भरने होंगे, जिसके बाद आपका यूआरएल मतलब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर व्हिच विल बी स्पेसिफिक और unique to you, it will be generated and it will stay with the UPSC exam process for the lifetime or until it changes it otherwise. ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स, जनरल डिटेल्स आपको भरनी होगी. वो बेसिक डिटेल्स, वो जनरल डिटेल्स भरने के बाद आपका यूआरएन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा एंड वो नंबर जनरेट करने के बाद यूआरएन में काफी सारे अलग अलग सेक्शंस है, उनमें आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी. योर बेसिक नेम, ठीक है, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर फैमिलीज बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, योर करियर एक्सपीरियंस. ठीक है, उसके बाद योर कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स इफ यू आर अवेलिंग द रिजर्वेशन, राइट. इफ यू बिलोंग टू सम अदर गवर्नमेंट जॉब देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. So etc. details will be need to be filled and uploaded on the URN portal. URN portal के बाद आता है common application form. ठीक है, this will be the third stage, common application form.
तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सब के लिए अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद देन एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म्स आप भर पाओगे, ठीक है। तो ये 2-3 स्टेजेस सबके लिए कॉमन रहेगी। जैसे जैसे यूपीएससी अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट करेगा तो एग्जाम स्पेसिफिक एप्लीकेशन विल बी डिफरेंट। वहां पे जाके आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो चूज करोगे, एंड बिकॉज आपने यूआरएन में ऑलरेडी सारे डिटेल्स फिल किए होते हैं, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिच किए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप एग्जाम सेंटर फोटोग्राफ्स वगैरह चूज करके वो फिर आप आगे फॉर्म भर सकते हो। अब एग्जाम सेंटर आपको हर बार अलग चूज करना पड़ेगा एंड फोटो और साइन भी आपको हर बार वापस अपलोड करना पड़ेगा, बट बाकी की जो आपकी डिटेल्स है वो सेम रहेगी। हाँ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी शायद आपको हर साल अपलोड करना पड़ेगा बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट होती है। Those candidates who belong to, for example, OBC non-criminal, they are advised to get the new non-criminal certificate from the Tehsil Karyalay or from the Setu office because they are demanding the latest certificate. ठीक है, not later than March. ठीक है, okay. So these are the basic changes brought in by the UPSC. अब ये तो सर चेंजेस हो गए, बट सेम क्या है या फिर क्या चेंज नहीं हुआ है? सबसे पहले एग्जाम का जो बेसिक क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट हैज नॉट चेंज्ड। सेकंड, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एटसेट्रा, दैट हैज नॉट चेंज्ड। ऑल्सो द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द एज क्राइटेरिया, it also has not changed, it has remained the same. For example, general category के लिए there are 6 number of attempts and the age limit is 32 years. For the OBC for the OBC non-criminal candidates, the number of attempts, maximum number of attempts is 9 and maximum age limit is 35. For the OBC creamy layer candidates, it will be the number of attempts and age limit will be same as that of the general. Then for the SC and ST category students, they don't have any limit on the number of attempts, but age criteria is prescribed, that is 37 years, or they have relaxation of 5 years. Okay. For the persons with disability, number of attempts is 9 and the age criteria is 42 years, means they have 10 years relaxation in the age limit. So these are the basic details changes introduced by the UPSC and the changes which haven't done by the UPSC, right? अब हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें वापस देखेंगे so that आपको ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाए और आप फॉर्म भरते समय कोई गलतियां ना करो। ठीक है, चलते हैं नोटिफिकेशन देखते हैं कैसे यूपीएससी ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं एंड कौन सी चीजें सेम है। ठीक है, so the last date for submission of online application is 24th February 2026 6 PM। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो चेंजेस हुए हैं उन्होंने पहले थोड़ा सा उसका क्रक्स दिया है। फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 कार्ड्स और मॉड्यूल्स यूपीएससी हैज प्रिस्क्राइब्ड। उसमें से पहला है अकाउंट क्रिएशन बाय द फिलिंग ऑफ बेसिक डिटेल्स, दूसरा है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज यूआरएन नंबर, तीसरा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और सीएएफ, एंड लास्ट में मतलब ये जो 3 मॉड्यूल्स है अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, these 3 stages or these 3 modules will be common for all the examinations। ठीक है, ये एक बार आपके पोर्टल में जाएगा वैसे ही रहेगा। what will change is the 4th module। what is the 4th module or 4th stage? it will be examination specific। जो एग्जाम के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके हिसाब से 4th module will be changing every time। ठीक है, और फॉर्म कहाँ पे भरना है आपको?
upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अब देखिए, once a candidate has registered on the online application portal, a universal registration number is generated. Universal registration number URN will be generated, it will be specific to you. और ये URN नंबर और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ये दो नंबर्स आपको नोट डाउन करके रखने हैं। यूपीएससी के साथ जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होता है उसमें ये दोनों नंबर्स आपको रिलेवेंट होंगे। ठीक है, और यूआरएन नंबर जो है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, अनलेस एंड अंटिल यूपीएससी चेंजेस द पोर्टल सिस्टम और रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, देखिए दूसरा चेंज अबाउट द आइडेंटिटी कार्ड। UPSC has recommended applicants are strongly advised to use their Aadhaar card as ID documents for the effortless and seamless verification and authentication. आपको ऑप्शन है दूसरे आइडेंटिटी कार्ड यूज करने का, बट इट हैज स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू यूज आधार, सो इट विल बी बेटर एंड वेरी सीमलेस। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, डायरेक्टली आप ऑनलाइन इस पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ये बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो यूपीएससी ने इस बार चेंजेस लाए हैं, इस बार आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा, उसके पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होगी, उसके बाद आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा दूसरी स्टेज, उसके बाद आप एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल पे जाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CSE एग्जाम ही आप चूज करोगे एंड उसमें लास्ट में आप फीस भरोगे, सेंटर सिलेक्शन करोगे एक्सेट्रा। ठीक है, और एक चेंजेस जो लाया था, लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग अप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, लाइव फोटो कैप्चर होगा इस बार, ये एक चेंज है। तीसरा, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर में क्या चेंजेस है, साइन 3 टाइम्स, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक 3 बार आप थोड़ी सी स्पेस रख के साइन करोगे ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर यूजिंग ब्लैक इंक पेन एंड अपलोड द सेम व्हाइल फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। 3 बार आपको साइन करके ब्लैक बॉल पेन से व्हाइट पेपर पे ये आपको अपलोड करना है, साइन एक के नीचे एक करनी है विथ सफिशिएंट स्पेस बिटवीन ईच साइन। ठीक है, देन candidates will not be allowed to withdraw their application after the submission. Further, no correction, alteration, modification in any field of the application form is allowed. मतलब एक बार आपने आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब एक बार आप बहुत ध्यान से URN एप्लीकेशन पोर्टल पे जो भी सारे डिटेल्स दिए हैं बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से वहां पे वो आप भरना, बिकॉज बाद में वो अलाउड नहीं होगा। और एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेजेस में अलग अलग मॉड्यूल्स है, तो हो सकता है कि आपके पास सारी चीजें ना हो, तो भरते समय आप जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो स्टेज बाय स्टेज भर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भरते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, जो आपने मतलब फॉर्म पूरा आपने सबमिट नहीं किया है बट आप मॉड्यूल्स में इंफॉर्मेशन भर रहे हो, तो उसके लिए अपडेट करने के लिए आपको लॉक एंड अनलॉक प्रोफाइल करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सारे डिटेल्स भर दी बट आपने एप्लीकेशन नहीं किया है, और इवन सारे डिटेल्स भरने के बाद आपको कुछ रियलाइज हुआ कि शायद कुछ गलती हो गई है, या फिर शायद हमने कम्युनिटी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो शायद गलत भर दिया है, तो आपको प्रोफाइल अनलॉक करनी होगी, फिर आपको डिटेल्स चेंज करने होंगे, एंड देन अगेन यू विल हैव टू लॉक द प्रोफाइल, एंड देन बिफोर final submission of the your application, check each and every information submitted by you, then lock the profile and then you proceed with the application. ठीक है, ये बहुत ध्यान से करना। ठीक है, जैसे एग्जाम फॉर्म आपको 24 फरवरी 2026 till 6 PM तक भरना है। एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा, 7 दिन से पहले, जो लास्ट ऑफिशियल वर्किंग डे होगा यूपीएससी का, उस दिन पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई थिंक ये 7 दिन पहले, मतलब वो संडे आ जाता है, तो संडे से पहले जो ऑफिशियल वर्किंग डे है तब आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के लिए सेम पेनाल्टी है 1/3। ठीक है, मतलब आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.67 मार्क्स डिडक्ट होंगे, या फिर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो
आपको एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स है, वो आपके डिडक्ट किए जाएंगे टोटल स्कोर में से, ठीक है। उसके बाद इस बार यूपीएससी ने जो आपके क्वेश्चंस है, यूपीएससी का जो जीएस और सीसेट का क्वेश्चन पेपर होगा, उसकी की या फिर उसकी आंसर की आपको यूपीएससी प्रोवाइड करेगी। एंड उस आंसर की पे या फिर अलग अलग क्वेश्चंस अगर आपको एम्बिगुअस लगते हैं, अगर आपको गलत लगते हैं, आप उस पर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। ये पिछले साल भी किया था, बट इस बार उन्होंने की भी दे रहे हैं और आप रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो विद इन 5 days फ्रॉम द 3rd day ऑफ द एग्जामिनेशन डेट, ठीक है। एग्जामिनेशन होने के बाद 3rd डे से लेके 7th डे तक, मतलब 5 दिन तक आप अपना रिप्रेजेंटेशन यूपीएससी को दे सकते हो, ठीक है। ओके, हेल्प डेस्क के लिए दिस विल बी द हेल्प डेस्क, ईमेल आईडी upsc@soap@nic.in, और नंबर जो है ये यहाँ पे नंबर लिखा है। एंड 10 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हो ड्यूरिंग 4th February टू 24th February। जो एप्लीकेशन भरने का जो टाइम है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है, डाउट आता है, आप हमसे भी आके मिल सकते हो और आप डायरेक्टली यूपीएससी को भी कॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है एंड ही और शी नीड्स द स्क्राइब टू राइट द एग्जामिनेशन, उनको अगर स्क्राइब चेंज करना हो और उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के 7th डे पहले तक अगर स्क्राइब चेंज किया, तो अकॉर्डिंगली उनकी एडमिशन कार्ड देने की डेट भी चेंज होगी। उनको 4 से 5 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। किसी भी तरह का मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, सब कुछ वहां पे बैंड है, तो ऐसी चीजें आप साथ में ना ही ले जाए तो बेटर है, ठीक है। ओके, देन आपको एग्जाम के कमेंसमेंट सेशन, एग्जाम के कमेंसमेंट टाइम से 30 मिनट्स पहले सेंटर पे वहां पे प्रेजेंट होना है, ये भी ध्यान रखना। देखो, इस बार फेस ऑथेंटिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स होगा, सो कैंडिडेट्स विल अंडरगो फेस ऑथेंटिफिकेशन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू मैंडेटरी। ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके चॉइस पर डिपेंड नहीं करता, हर किसी को फेस ऑथेंटिफिकेशन से जाना होगा। एंड उसी के लिए आपका फेस ऑथेंटिफिकेशन उस फोटोग्राफ के साथ होगा जो आपने अपलोड किया है और जिसका लाइव कैप्चर भी यूपीएससी ने फॉर्म भरते हुए किया है, ठीक है। तो इस बार बहुत रिगरस वेरिफिकेशन होने वाला है। जो ईमानदार कैंडिडेट्स हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अनदर प्रोसीजर। बट जो डूबियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो मिसयूज करते थे, उनके लिए टेंशन की बात है और ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो विच for all which services UPSC conduct the examination, so here I will read out the list of services: Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Audit and Account Service Group A, Indian Civil Account Service Group A, Indian Corporate Law Service Group A, Indian Defence Account Service Group A, Indian Defence Estate Service Group A, Indian Information Service Group A, Indian Postal Service Group A, Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service Group A, Indian Railway Management Service Traffic Group A, Indian Railway Management Service Personnel Group A, Indian Railway Management Service Accounts Group A, Indian Railway Protection Force Service Group A, Indian Revenue Service Customs and Indirect Tax Group A, Indian Revenue Service Income Tax Group A, Indian Trade Services Group A, Armed Forces Headquarters Civil Service Group B, यहाँ से ग्रुप बी सर्विसेज शुरू हो रही है, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड। उसके बाद दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली सिविल सर्विस दैट इज डायनेक्स ग्रुप बी। दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विस दैट इज डायनेक्स ग्रुप बी। पौंडीचेरी सिविल सर्विस दैट इज पॉन्डिक्स ग्रुप बी एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विस पॉन्डिक्स ग्रुप बी। सो इन सर्विसेज के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब यहाँ पे देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, अगर आपको 2025 के अटेम्प्ट में इन तीनों सर्विस में से कोई सर्विस मिलती है या फिर आपको 2024 में इन तीनों में से कोई सर्विस मिली है, तो आप वापस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। आप एग्जाम ही नहीं दे सकते वापस, चाहे वो 26 का अटेम्प्ट हो, 27 का, जो भी, ठीक है। इनके लिए सर्विस देना अलाउड। अब आते हैं ग्रुप ए सर्विसेज के बारे में, ठीक है, यहां से लेके यहां तक
फ्रॉम, ये सारी सर्विसेज जो है ये आती है ग्रुप ए सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है ये ग्रुप ए सर्विसेज। अब यूपीएससी में चेंज क्या लाया है, इन सर्विसेज में अगर आपको 2025 में इनमें से कोई सर्विस मिलती है, या फिर आपको अगर 2024 में 23 में इससे पहले इनमें से कोई सर्विस मिली है, तो यूपीएससी हैज गिवन यू ओनली वन चांस टू रीअपियर इन द एग्जाम। आप सिर्फ 2026 के एग्जाम में अपियर हो सकते हो, ठीक है। जिनको, इसमें दो केसेस देखते हैं। केस वन, अगर आपका 2025 में आपको ग्रुप ए सर्विस मिलती है, अगर आपको 2025 में ग्रुप ए सर्विस मिलती है इनमें से कोई भी, आप सिर्फ और सिर्फ 2026 में अटेम्प्ट दे सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें सेकंड केस है, अगर आपको 2024 एंड बिफोर आपको ग्रुप ए सर्विस मिली है, तो यूपीएससी हैज गिवन यू टू चॉइसेस, यू कैन अपीयर either in 2026 attempt or you can attempt 2027 attempt, ठीक है। आपको दोनों में से एक अटेम्प्ट ही लेना होगा अगर आपको 2024 या उससे पहले ग्रुप ए सर्विस मिली है तो, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आप अगर बोलोगे कि सर मुझे 2026 के बाद भी अटेम्प्ट करना है, तो आपको ग्रुप ए सर्विस जो आपको मिली है वो आपको छोड़नी होगी, वो आपको रिजाइन करनी होगी। अगर 2024 और उससे पहले वाले कैंडिडेट्स को भी 2026 या 27 या फिर दोनों में अटेम्प्ट देने हो, उससे ज्यादा अटेम्प्ट देने हो, बाद में अटेम्प्ट देना हो, तो भी आपको सर्विस रिजाइन करनी पड़ेगी। एंड दिस इज अ गुड इनिशिएटिव कंसिडरिंग दैट एवरी ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे उन्हीं की काफी कंपटीशन होती थी फ्रेश एस्पिरेंट्स की। तो दिस इज अ गुड स्टेप फॉर द फ्रेश एस्पिरेंट्स, ठीक है। वैसे तो फ्रेश एस्पिरेंट्स भी काफी मेहनत करते हैं, बट गिवन दैट ऑल द रिपीटर्स द सर्विस इन तीन सर्विसेज के अलावा बाकी सब सर्विसेज के कैंडिडेट्स इधर सर्विस अपग्रेडेशन के लिए या फिर केडर अपग्रेडेशन के लिए अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। तो वो कंपटीशन कम करने के लिए, फ्रेश एस्पिरेंट्स को चांस देने के लिए और करियर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ये स्टेप लाया है। अब जो बाकी ग्रुप बी सर्विसेज है उनके लिए ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रुप बी सर्विसेज वाले कैंडिडेट्स वापस एग्जाम दे सकते हैं 26, 27, 28 का, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली रेस्ट्रिक्शन इज ब्रॉट इन बाय द यूपीएससी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 933, in which 33 vacancies belong to the persons with disabilities from multiple categories, ठीक है। and last में there will be Pratibha Setu portal for the candidates who could not make it to the final list of the UPSC but they have given the interview, or if some candidates are selected in the reserved list but those candidates who couldn't find the name in reserved list also, their data, their profile will be shared with the public sector undertakings, private sectors, statutory and autonomous organizations of the government. और जब इनको जरूरत पड़ेगी ये डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए या फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, ओके। So this is all about the changes brought in by the UPSC and ठीक है। So fill your form accordingly and be very careful. Have all the documents with you ready. Also keep the look, keep the facial look same which you want to be appearing for the interview process. Okay. So and after that click a new passport size photo. Also practice your signatures multiple times so that there will be consonance in 3 signatures which you upload in the online portal, ठीक है, URL, right? So this is all about new notification changes introduced by the UPSC and the static portions or the things which remained unchanged. Okay, thank you all.